So this is basically the continuation series of K-map in the Boolean algebra. Hello everyone, 1 second. So I'm just sharing the screen to all of you. Okay. So in the last class, we have seen how to solve the questions with the help of K-map and how to reduce the expressions with the help of K-map. We have also seen how to make the octet, chord and pair. 1 second, please. Okay. So basically, the introduction part of the K-map is almost over. Now we are basically doing the questions related to the K-map. So 2020 questions in the last session we have already solved. And apart from that, we have also seen how the NAND and NOR gate behave in a universal manner. Means suppose any reduced expression is there, and how can we construct the gate with the help of NAND or with the help of NOR. Okay. And we have also seen one case, assume that variable and their complement are available as input. In that situation, we are not supposed to use the NOT gate. Okay. These are all the things we have already covered. So today we will see some more questions related to the K-map. Once all the questions will get over, then we can move from the SOP to POS. Presently, we are basically doing the questions related to the sum of product. So as you know that there are the two categories in the Karnaugh map. One is SOP, the another one is POS. So presently we are doing the question related to the sum of product. Then later on we will do the product of some questions. After 2 lectures, okay? So let's get started the today's session. So I have already created the list of the questions and already I have created the template for solving the K-map questions. So 1 second, please. Okay, these are all the questions we have done. Today, basically, we are going to do this question. Okay, so I'm just copying this question from the here. Okay, and okay, after reduce the expression and how the gate will be constructed, we will decide it little bit later. Just I'm copying this question. Okay, now I'm just opening the paintbrush. Okay, so 1 second, please. I'm just replacing this question. Okay, just a moment, please. Okay, now I've pasted the new question over here. This question I'm going to solve. Okay, now I just want to increase the font so it will be visible to everyone. That's fine. This is basically a 2019 board question. Okay. All the participant have joined. So as per the convenience of a student, in between the lecture, I just want to discuss one thing. As per the convenience of a student, I've decided the 2 time slots. One is 5 to 6, the another one is 4 to 5 on the different days. So according to your schedule, you can join the batch. Okay, so it's done. Okay, 1 minute. So now you can see that there are these numbers. In numbers पर basically हमको one plot करना है. The procedure is absolutely same. Okay. Only the chord and octet will be the different. So 0, 2, 3, 4, 5, and this is 8, 10, 11. Okay. 1 second. 12. This is a 12.
13. Okay, fine. Now you have to check how many octets, chords and pairs are available. First of all, we have to check, we have to see from the starting point is octet. सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें octet की possibility है या नहीं. Octet का मतलब होता है basically 8 ones एक group में आना, and there should be some specific condition for making the octet. तो वैसी कोई कंडीशन यहां पर अवेलेबल नहीं है, वैसी कोई कंडीशन यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं आ रही है. 1 मिनट, 2019. ओके, नाउ एनीवन कैन हेल्प मी. ओके, कि अब इसमें क्या बन सकता है? व्हाट आर द 3 chord. ओके, कॉर्ड. Chord. तो हाउ मेनी कॉर्ड्स? 3. 2 chord. ओके, ग्रेट, एवरीबॉडी इज 2 chord. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, एक चीज और मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं. हमें इस पॉइंट पर जल्दी नहीं करना है. अगर हम जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर कुछ गलत आ जाए. हमें कॉर्ड्स तो बनाने हैं, लेकिन कम से कम कॉर्ड्स में हमको इन वंस को कवर करना है ताकि रिडंडेंसी ना हो. रिडंडेंसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पर अगर पॉसिबिलिटी 4 कॉर्ड्स की है और आप वहां 5 कॉर्ड्स बना देते हैं, सो द 5th वन विल बी रिडंडेंट. तो बहुत ध्यान से हमको ये काम करना है और ज्यादा से ज्यादा वंस को कवर करना है. ओके, तो कैन वी मेक दिस कॉर्ड? 1 मिनट प्लीज. क्या ये एक कॉर्ड हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है. नाउ आफ्टर दैट वन मोर कॉर्ड इज देयर. हमें ज्यादा से ज्यादा वंस को कवर करना है. दिस इज द अनदर कॉर्ड. So 2 chords are there. Now ये दो हमारे पास 1 है. वैसे तो हम इनको पेयर्स में भी ले सकते हैं, बट रूल ये है कि अगर कॉर्ड की पॉसिबिलिटी हो तो आप पेयर नहीं बनाएंगे. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ वेरी लेंथी लेक्चर्स, ओनली 40-minute lectures I have scheduled. Okay, so this will be the another chord, right? Now in this question we have created the 3 chord. Now the second level is that we have to write down the reduced expression. So 1 second. Okay, so here I am making some area. Okay, chord 1 हम किसको लेकर चल रहे हैं? ये हमारा अपना डिसीजन है, हम किसी को भी chord 1 ले सकते हैं. तो जो हमने बनाया है हम उसी को chord लेते हैं 1. तो सबसे पहले हमने ये कवर किया था, तो 4, 5, 12 and 13. हम चाहते हैं कि इस टॉपिक में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के साथ हमारे स्कोर को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4, 5, 12 and 13. 4, 5, 12 and 13. नाउ वी हैव टू चेक व्हाट आर द कॉमन. जस्ट अ मोमेंट. इस कॉर्ड की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस कॉर्ड बेसिकली, तो इस कॉर्ड के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इस कॉर्ड के लिए, फॉर दिस कॉर्ड, एंड दीज सेट ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व. नाउ वी हैव टू चेक. Sir, BC bar. Correct, absolutely correct, very good. Okay, so improvement is there, excellent. So BC bar, 1 minute. BC bar, understand? Okay, so 1 minute. Just a moment, please. I'm reducing the circles and just B, C bar. All right. Now what about the second chord? 1 minute. Second chord को हम ले लेते हैं. ऑनलाइन क्लासेस में क्लास थोड़ा स्लो चलती है, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आता है. ये बात मैंने कल भी बताई थी. कॉर्ड 2. अब हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. सेकेंड कॉर्ड हमने कौन सा लिया था? मैप रोलिंग पर, टॉप टू डाउन मैप रोलिंग, ये लिया था हमने. ओके, सो 3, 2, 3, 11, 10. ओके, अब अगर हम इसमें कॉमन देखें, तो अगर हम इसमें कॉमन देखें इस कॉर्ड में,
तो हमको मिल रहा है बी बार सी। अगर आप एग्री हो तो हम लिख दें, अदरवाइज हम एक्सप्लेन कर दें। बी बार सी। Yes, sir. Okay, are you all getting? Can I Yes, write sir. directly? Okay, just a moment, please. B बार C कैसे देखा हमने? ठीक है, 1 मिनट। हमने इसको इस तरह से देखा कि अगर ये कॉर्ड हमारा बन रहा है तो इस कॉर्ड के कंपैरिजन में हमारे पास ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, और अगर हम इस पोर्शन को देखें तो उसमें ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, और अगर हम अपर रीजन में देखें तो ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। नाउ वी हैव टू चेक द कॉमन। सो इनमें कॉमन हमें बी बार मिल रहा है, यू कैन सी, और इन दिस पोर्शन वी आर गेटिंग द कॉमन सी। तो बी बार सी आई हैव मेंशन। ओनली वी हैव टू राइट डाउन द कॉमन वेरिएबल्स, ओके, आफ्टर मार्किंग। नाउ एक बात हमने डिस्कस करी थी किसी क्लास में, हो सकता है आप उसमें हो या ना हो। अब अगर हम कॉर्ड कॉट 3 की बात करें तो कॉट 3 है हमारा 0, 4, 12, 8। जब भी स्ट्रेट लाइन में हमारा कॉर्ड बन रहा हो, स्ट्रेट लाइन जैसा कि यहां पर बन रहा है इन द स्ट्रेट लाइन, डी बार डी बार। बिना सोचे समझे Three. ये वेरिएबल बस लिख देना है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे एंड वी विल नॉट गेट एनी कॉमन टर्म इन दिस रीजन। इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। यू कैन सी दैट द बी बार इज देयर बट इज नॉट इन दिस सेट। हमें कॉमन लिखना होता है। बी इज देयर बट इट इज नॉट इन हियर। ए बार इज देयर ओके बट नॉट इन दिस सेगमेंट। सो नो नथिंग, नो वेरिएबल इज टेकिंग कॉमन हियर। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे सी बार डी बार। तो सी बार डी बार इज द लास्ट reduced expression of chord. Okay, so it's done. Now after that we have to write down the reduced expression. So I'm just going to write reduced expression is BC bar plus B bar C plus C bar D bar. Understand? 1 minute. This is basically the reduced expression. Now अब हमें क्या करना है reduced expression का, ये हमें question में given होगा. Okay, so 1 second. In the question it is given, draw the logic gate diagram for the reduced expression, okay, using the NAND gate only. हमें NAND gate का use करना है and assume that variable and their complement are available as input. Means हमें NOT gate use नहीं करना है, लेकिन सारे gate हमारे NAND होने चाहिए. Okay. And B C bar, okay, I'm just cross checking my answer, and B bar C, okay, and C bar D bar, absolutely fine. So now we have to draw the gate. So gate के लिए B C bar, okay, तो B and C bar को हमें बार के साथ पास करना है। ये मतलब होता है assume that variable and their complement are available का। और अब इन दोनों के बीच में वैसे तो जनरली एंड गेट है, बट हमें सारे गेट नैंड यूज करना है। अंडरस्टैंड? नाउ बी बार सी, सो बी बार सी, जैसे ही हमारा ये बुलियन का पार्ट ओवर हो जाएगा, ये आपके कॉपरेशन से ही ओवर होगा, उसके बाद इमीडिएटली हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इन्हीं टाइम स्लॉट्स में। C bar, just a moment please, and D bar, okay, इसको D समझिएगा आप, ठीक है ना? And this is the NAND gate, okay. Now after that we have to connect all these lines with the one more NAND gate due to this plus sign, इन plus signs की वजह से, okay. After creating this NAND gate,
my question will be over. अब आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक काम और करना है. इस एक्सप्रेशन को, दिस एंटायर एक्सप्रेशन यू हैव टू राइट डाउन इन दिस सेक्शन. दैट्स इट. ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड टू एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबकी Yes, समझ sir. में आ गया? ओके, यस सर. मैं श्योर के सबकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थर्ड सेशन हमारा चल रहा है K-MAP पे. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन. CBSE इज ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो. कहीं पर कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप फौरन मुझे बताएं, और अदरवाइज है. सॉरी, कॉर्ड 3 से बता दीजिए. कॉर्ड. कॉर्ड कौन सा कॉर्ड? 3. कॉर्ड थर्ड. यस सर. ओके, कॉर्ड थर्ड हमारा ये. वहाँ पेयर करने हुआ. सॉरी, यस सर, कॉर्ड थर्ड में पेयर भी तो बन रहा है. थर्ड कॉर्ड में सब पेयर भी तो बन रहा है. ओके अयान, एक बात हमेशा याद रखना, एंड और मैं सारे स्टूडेंट से एक बात कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. जहां पर कॉर्ड की पॉसिबिलिटी होगी, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, वहां पर पेयर जरूर बनेगा, क्योंकि कॉर्ड में 4 चीजों की जरूरत होती है और पेयर में 2 चीजों की जरूरत होती है. 2 ones और मे बी 2 0. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर हमारे पास कॉर्ड की पॉसिबिलिटी है तो हम पेयर के बारे में सोच नहीं सकते. अगर हम सोचेंगे तो हमारी एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं होगी. अंडरस्टैंड? और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना. अगर ऑक्टेट बन रहा है देन वी विल नॉट थिंक अबाउट द कॉर्ड. यू कैन सी दैट आई एम प्रॉपरली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. क्या यहां पर कॉर्ड नहीं बन सकता था? अगर कॉर्ड बन सकता था तो हम 2 पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि पेयर से क्या होता है, अगर हम पेयर बना रहे, सपोज P इंडिकेट्स अ पेयर, तो आफ्टर रिड्यूसिंग वी विल गेट द 3 वेरिएबल. ओके, क्लैरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिड्यूस करने के बाद हमको 3 वेरिएबल में आंसर मिलता है, और अगर हम पेयर की जगह पर कॉर्ड को फॉलो करते हैं और बनाते हैं तो हमको आंसर 2 वेरिएबल्स में मिलेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 4 वेरिएबल कार्नोफ मैप. तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के कंपैरिजन में कम होते हैं, और इसका मतलब है कि हमें कॉर्ड से ज्यादा हाई रिडक्शन मिलता है इन कंपैरिजन टू पेयर. हाँ, अगर कॉर्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है then definitely we will go with the pair. But here you can see that there is a possibility of chord on the basis of re-involving the variable. Re-involving the variable का मतलब होता है overlapping. हम overlapping को अपने Karnaugh map में use कर सकते हैं because it is one of the rule in the Karnaugh map. Overlapping का मतलब होता है कि अगर 2 ones कहीं पर किसी chord में involve हैं, look at the situation. तो ये 2 ones दोबारा री इन्वॉल्व हो सकते हैं इन दोनों वन को कॉर्ड बनाने के लिए. ओके, शुड आई एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन? क्या हम कोई चीज और बताएं? ओके, तो आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है कि कहां पर कॉर्ड बनाना है और कहां पे पेयर. ओके, अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर हमारा ये बनता, दिस वन and can be overlapped, but that is not appropriate. वो ठीक नहीं था. Okay, हमारे मार्क्स कट जाते. Okay, so this is basically the answer tested by the marking scheme. 1 minute. This is the answer. ये आंसर हमारा आ रहा है. Okay, और ये हमारी ICSE की मार्किंग स्कीम से टेस्टेड है. Okay, so this is absolutely the one answer. हाँ, ठीक है. Okay, 1 minute. अब ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. नाउ वी कैन, आई एम जस्ट कॉपिंग. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, जब तक हम इसे कॉपी कर रहे हैं, फिर भी कोई स्मॉल छोटा डाउट अगर किसी को हो तो पूछ सकता है. जस्ट अ मोमेंट. सर कॉर्ड 3 में डी बार कैसे आया? कॉर्ड 3 में बी बार कहाँ है? डी बार है सर. डी बार ये लिखा ना मैंने. ये लाइन थी ना हमारी कॉर्ड की. इस लाइन में मैंने बताया आपको, ये कॉर्ड था ना हमारा कॉर्ड 3, उसमें ये सारे वेरिएबल एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, बट सी बार डी बार इज द कॉमन.
ये सी बार डी बार हमने यहां से देखकर लिख दिया, यहां से देखकर लिख दिया, अंडरस्टैंड? क्योंकि जब सी बार डी बार इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब हम सी बार डी बार को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, यही सी बार डी बार इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, यही सी बार डी बार जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, और यही सी बार डी बार इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। जब सब में एग्जिस्ट करेगा तो सी बार डी बार विल बी द कॉमन इन दिस पर्टिकुलर कॉर्ड। इस कॉर्ड में आपका सी बार डी बार ही कॉमन होगा, अंडरस्टैंड? ओके। Yes, sir. Each and every lecture in the Boolean are interconnected. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सेक्शन मिस कर दिया है तो थर्ड सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी दोनों सेक्शन आपके YouTube पर अपलोडेड हैं और आपको लिंक शेयर किया जा चुका है, तो कहीं पर आपको डाउट हो प्लीज गो थ्रू दीज लेक्चर्स। 1 minute, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजा गया है ग्रुप पर आपके रेफरेंसेस के लिए, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। ओके, और रिकॉर्डिंग भी है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे ले सकते हैं। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही बचे हैं, ओके, और वो भी एसओपी का। अगर आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो फिर हम इमीडिएटली जो है वो पीओएस स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए आई एम जस्ट टेकिंग अ न्यू फ्रेश टेम्पलेट, और देखते हैं यहां पर अगर कंट्रोल जेड हमारा वर्क कर जाए। नहीं कर रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस शीट, डोंट सेव। 1 minute please. This is the another fresh template for the next question. Okay, only we have to just change the question. So I'm going to take this question. Okay, और इसमें कुछ और तरीके से गेट्स बनाने को कहा जाएगा। 1 minute please. This is the another question of the K-map. Okay, now only these numbers are changing. Okay, procedure is not going to be changed. So 0 to 0 2 4 8. Okay, this is 8. कुछ चीजें एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आती हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो वो चीजें थोड़ा क्लियर होती हैं। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हैं हमने अपनी शीट में कि आप उन्हें ट्राई करें। 8 9 एंड दिस इज 10, आफ्टर दैट 12 and 13. Okay, 0 2 4 8 0 2 4 8 9 10 12 and 13. क्या बेसिकली इसमें बन सकता है? According to Chord. how many chords are there? Try जरूर लीजिए, attempt जरूर लीजिए। How many chords are there? 3. Sir, 2. 3. 3. Sir, एक octave. ऑक्टेट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसके लिए 8 1s हमें ग्रुप में चाहिए। ओके, 3 chord. 3 chords, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम 1 को कवर करना। तो मैक्सिमम 1 के लिए ये कॉर्ड है। ओके, तो एक कॉर्ड तो हमारा ये बन गया। अब इन 2 1s के लिए हम एक और कॉर्ड बना सकते हैं यहां पर, नो प्रॉब्लम, दिस एब्सोल्युटली फाइन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दीज 2 1s? इन 2 1s को कैसे एडजस्ट किया जाए? हम
इन 2 1s के साथ एक पेयर भी तो बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, लेकिन कॉट की पॉसिबिलिटी अगर ना हो तो पहले हम ये देखेंगे क्या कॉट की पॉसिबिलिटी है। यस, यहां पर कॉट की पॉसिबिलिटी है, तो हम पेयर नहीं बना सकते। सो हम बैकआउट कर रहे हैं। ओके, बैकआउट कर गए। अब हम इन वंस को इन्वॉल्व करेंगे कॉट के साथ। कैसे? आपको मालूम है कि हमने केस डिस्कस किया था, दैट केस वाज कॉर्नर कॉर्ड। तो अगर 4 कॉर्नर्स पर हमको एक एक वन मिल रहा है, तो डेफिनेटली दे कैन क्रिएट वन कॉर्ड। So this is also one possibility of the chord. ये लाइन ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ओके, somebody by mistake writing on the paintbrush. Okay, fine. So just we have to check all the reduced term. So immediately without wasting the time. Okay. So please, can you please help me? कॉर्ड वन। कॉर्ड वन हम किसको लेके चल रहे हैं? कॉर्ड वन हमने लिया 12, 13, 8, 9। सो कैन वी इमीडिएटली राइट ए सी बार? अगर आप एग्री हो तो इस कॉर्ड Yes, sir. कॉर्ड को देखते हुए हम इमीडिएटली लिख सकते हैं ए सी बार। यस, वेरी गुड AC रिस्पॉन्स। ए सी बार, यस। सो ए सी बार, अंडरस्टैंड? दिस इज बार। Okay, now what about the cot 2, my dear student? Cot 2 हमने लिया था स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है तो 0, 4, 12 bar D bar. C bar D bar. वेरी गुड। C bar D bar. 0, 4, 12, 8. Okay, then C bar D bar, understand? Okay, now after that the corner chord, this is our cot third। तो जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप आंसर दे दें। 0 to 8, 10, 0 to 8, 10। कॉर्नर कॉर्ड में क्या होगा? कॉर्नर कॉर्ड में द मीटिंग इज विल बी ओवर एट इन 10 मिनट। 10 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी। कॉर्नर कॉर्ड में अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से मिल रहा है बी बार एंड डी बार। D bar. D bar D bar. आपके साथ भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख देते हैं पहले यहाँ पर बी बार डी बार, अंडरस्टैंड? ओके, देखो इसमें ऐसा होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद जब हम 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो के मैप हमें बहुत इजी लगने लगता है, बट एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व द 10 to 15 क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आप ये कॉन्सेप्ट भूलने लगेंगे। तो इसलिए कीप ऑन प्रैक्टिस। टाइम की टेंशन मत लीजिए, आई विल कवर द एंटायर कोर्स बिफोर द टाइम, बहुत पहले हम कवर कर लेंगे। बस आपको जिन टॉपिक्स पे रुकना है। अभी लास्ट ईयर प्रॉब्लम ये हुई कि कंपैरेटिव तक कुछ स्टूडेंट्स के कार्नोक मैप गलत होते आ रहे, तो उनके 10 मार्क्स कंपैरेटिव में कट रहे थे, बस कुछ मिस्टेक्स वो कर देते थे। ओके, वही हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अभी जिस टॉपिक पर आप हैं समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम का। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के लिए हमें कैसा लॉजिक गेट बनाना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। अब इसमें दिया है कि ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, assume that variable and their complement are available as input। मतलब variable and their complement are available as input। ओके, that means नॉट गेट नहीं यूज करना है, लेकिन नैंड गेट की कोई बात नहीं कही गई। तो अगर नहीं कही गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या है? रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन हमारी आ रही है ए सी बार प्लस सी बार डी बार प्लस बी बार एंड डी बार, अंडरस्टैंड? गेट, गेट के लिए ओके 1 मिनट। ओके, गेट के लिए यहां पर बना रहे हैं ए एंड सी बार। सी बार के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट पास करना पड़ेगा क्योंकि नॉट गेट हमें यूज नहीं करना है। और ए सी बार के बीच में कौन सा गेट फिट होगा? एंड गेट, क्योंकि नैंड गेट के लिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। सी बार एंड डी बार connected by the NAND gate। 1 minute।
After that, B bar, D bar. One minute, please. Okay. Now we have to connect all these edges or lines with the OR gate. Understand? और अच्छा बन गया, ठीक है, एंड नहीं बन पा रहे. Okay, fine. So this is the question already solved. Okay, this is the 2018. Okay, मैंने ऐसा लिख भी दिया है. Sum of product. After the sum of product, definitely in the next class, and आप अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में POS डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम. सो जस्ट आई हैव सेंड इन योर ग्रुप. ओके, कार्नोट मैप. अच्छा, एक चीज और, हमने कुछ बूलियन लॉ से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, बूलियन लॉ, और उसमें हमने हर लॉ को, आइडेम्पोटेंस, इन्वोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ, सबको बहुत डिटेल में वहां पर बताया था. क्या आपने उस वीडियो को देखा? किसी ने देखा उस वीडियो को? ओके, ये बन रही है सिर्फ आपके लिए ही, लेकिन होता क्या है कि उस पर 150, 167, 200 व्यूज तक पहुंचे हमारी वीडियोस पर, लेकिन हमारे अपने स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा. तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दैट वीडियोस, वो आपके लिए बन रही है. सेकेंड, हमने एक वीडियो लॉन्च की थी इम्प्लीकेशंस पे, जिसके अंदर हमने यू आर गेटिंग, इफ यू आर एलिजिबल देन यू आर गेटिंग द जॉब, वो था एग्जाम्पल. उसके अंदर इम्प्लीकेशन बूलियन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको भी आप वॉच कीजिएगा. अंडरस्टैंड? नाउ आई थिंक this is sufficient for this class, but if you have any query I can discuss. So 2 questions we have already discussed, and the 2017, no, only the year is changing but the method is not changing. तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा बनाने की. के मैप हम यहीं पर अभी रोक रहे हैं, और स्मॉल एनीथिंग इफ यू वांट आई कैन डिस्कस विथ यू इन द 5 or 10 minutes, प्लीज. और in the next class I am planning to start the POS, but the condition is applied, you have to complete these questions. जितने भी questions हैं, at least board वाले तो question कर ही लीजिएगा. Okay, this is the San Francisco region, and after that CMS comparative and pre-boards. ये जरूर questions try कीजिएगा. Okay, अच्छा, एक केस ये है, देखो. It is my exceptional case I have given in this question. Sometime what happens कि हम रूल्स तो ये लेकर चल रहे हैं कि हमको ऑक्टेट बनाना है, उसके बाद कॉर्ड बनाना है, उसके बाद पेयर बनाना है. अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द ऑक्टेट, देन कॉर्ड, देन पेयर. बट दैट रूल इज स्लाइटली चेंजिंग इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन को आप पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. इसमें ये रूल थोड़ा सा चेंज होगा. दैट्स व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन इन द एक्सेप्शनल केस कैटेगरी. ओके, so do you want to ask any question? Please respond. No sir. Okay, min-term, max-term is clear to everyone. Truth table is clear. All the logic gates we have seen. One more topic I will discuss, that is the NAND and NOR universal. Okay, वो भी आपको मालूम है, ठीक है. और अगर किसी की बूलियन एक्सपर्ट हो रहे हैं आप, तो साइड बाय साइड आप प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करके चलिए. Okay, CBSC, please ask any question if you have any problem, please. Please respond. 1 minute, let me check participant में कौन कौन है. Ishika, do you have any problem? No sir. Divyanshi, please No, respond. sir. Clear? K-map is clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If you have any problem, please. Okay, Arya Kapoor, No sir. Mohammad Tahar Rizvi. Okay. So I'm just ending this session. Okay. In the next class, अगर आपको कुछ और डिस्कस करना हो तो मुझे पहले से एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा. Okay, thanks to all of you. Okay. Recording will be uploaded very Okay, soon. sir. Okay sir.